Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ushna Tariq from the platform of South Today. The name of program Book Reviews and Reviewers. As you all know that in this program we specifically chose certain kind of books in order to make review for those books and for those people who actually don't want to become bookworm. So in this episode we have chosen a very influential book written by an influential author, and the name of book is Essentialism, written by George M.C. Owen. Less but better. The basic proposition of essentialism is that you can make your highest contribution towards the thing that really matter only when you give yourself permission to stop trying to do it all and say yes to everyone. So अगर हम इसको simple words में push करते हैं तो basically आप उन चीज़ों में excel कर सकते हैं जो चीज़ें आपके लिए important होते हैं, जिसको Pareto principle भी बोलते हैं. You are actually supposed to put 80% of your time over doing the things which are very much important to you, and lesser of your time over doing the things which are at least or not even important to you, and this is known as Pareto principle. And one more important thing is that you need to stop saying yes to everybody, because हर person के लिए हमारे लिए important नहीं होता कि हम हर किसी को yes बोलें, हर situation पर हम okay बोल दें. You can apply 4D solution here, and that 4D solution is do it, dump it, defer it or delegate it. आप इसको या तो खुद कर सकते हैं if you consider yourself the best person of doing anything. अगर आपको अपना आप बिल्कुल right person नहीं लगता for doing any purposeful task, you can delegate it to someone else, you can defer it to some other time, or you can actually dump it because I'm not the right person. So basically the book is basically discussing two type of people into the life. One is the essentialist and other one is non-essentialist. Essentialism basically बात करता है कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं, कैसे आप अपनी एनर्जी को पर्पसफुली कैसी डायरेक्शन की तरफ ड्राइव कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैसे आपको आइडिया हो सकता है दैट हाउ एक्चुअली यू आर गोइंग टू do the right things and how actually you are going to consume your right time and energy in order to create the biggest impact into your life where it basically matters. ये करने के लिए आपको drastically अपने levels of performances and results के ऊपर focus करने की ज़रूरत होती है कि basically क्या आप put on कर रहे हैं, क्या आप achieve कर रहे हैं. So basically this book is dealing with two parts. Part one, essence. What is the core mindset of an essentialist? Essentialist person का core mindset basically 3 shift से गुजरता है. First is choice. आपको सबसे पहले पता होना चाहिए what is actually going to be chosen by your side in order to make remarkable differences into your life, because you cannot say yes to everything and you cannot even say no to every person in every situation. So basically आपको यहाँ पर अपनी लाइफ का कंट्रोल इस तरीके से अपने हाथ में लेना है कि आपको 2 situations मिलेंगी. One is have to's and other one is chose to's. आपको have to's हमेशा प्रेशर की पोजीशन में रखेंगे, chose to's हमेशा आपको डोमिनेंस देंगे, because everything in life is a choice and everything is actually dependent upon the choices you are going to make in your life. Second point is which problem do I want? Because we are surrounded by a lot of problems, we are surrounded by a lot of distractions. So basically you have to stop thinking over what is unimportant. आपको फिल्टर करने की ज़रूरत है किस चीज़ के ऊपर आपने टेंशन लेनी है, किस चीज़ के ऊपर आपने अपने मैस वैल्यू को कंज्यूम करना है, और किस चीज़ को आपके लिए बहुत ज़्यादा वाइटल इंपॉर्टेंस हासिल है, आपको ये करने की ज़रूरत होती है. At the third point, we will be moving to a trade-off, and trade-off is a fact of life. You cannot do everything, but you can do anything. तो अपने आप को ये महसूस करवाना छोड़ दें that I am an important person and I can do everything. आपको filter करके अपने आप को यहाँ पर लेकर आना है कि basically what is the right direction for me and what are the right actually ways in order to implement these right and highest impacted options. और second part जो कि इस book का deal करता है वो करता है exploration, कि किस तरीके से आपने एक्सप्लोर करना है अपनी पर्सनैलिटी को, और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो कि बेसिकली डिस्कस किए गए हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज एस्केप. जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि यू आंट बी द राइट पर्सन फॉर द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम एंड यू एक्चुअली कांट बी द एक्चुअली करेक्ट पर्सन, कि आप ही ने वो काम करना है. सो बेसिकली द पर्क्स ऑफ बीइंग अनअवेलेबल. सम टाइम आप अवेलेबल नहीं होते, सम टाइम आप अपनी बॉस की हर किस्म की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, तो कभी कभी आप अनअवेलेबल भी हो सकते हैं, कभी कभी आप चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हैं, कभी कभी आप एस्केप रूट को भी फिगर आउट कर सकते हैं. सो दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू कि आपने एस्केप रूट को कैसे फिगर आउट करना है. और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लुक, एंड लुक व्हाट इनटू व्हाट रियली मैटर्स. क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है, क्या फिल्टर्ड है, क्या नॉट फिल्टर्ड है,
क्या चीज़ आपके लिए ऑप्टिमिस्ट है, क्या चीज़ आपके लिए पैसिमिस्ट है। और उसके अलावा थर्ड पॉइंट पर जब आपको इन चीज़ों का फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन का आइडिया हो जाता है, यू आर एक्चुअली गोइंग टू प्ले। आपने प्ले कैसे करना है, यू आर सपोज टू एम्ब्रेस द विजडम ऑफ योर इनर चाइल्ड। समटाइम हम जब ग्रो अप कर जाते हैं, हम मैच्योरिटी कंटिन्यूम से गुजरते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हमारा जो इनर चाइल्ड है उसकी वॉइस को हमें सप्रेस कर देना चाहिए। यू एक्चुअली आर सपोज टू डू दिस ऑल द टाइम। आपको समटाइम्स उसकी वॉइस को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, आपको उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको उसको परसीव करना चाहिए, एंड देन यू आर सपोज टू इंटरप्रेट इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो आप अपने विजडम को एम्ब्रेस करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिलेक्शन मैटर्स द मोस्ट, कि आपकी सिलेक्शन का एक्सट्रीम क्राइटेरिया क्या है, आप किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर डिसीजंस ले रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी गोल बुक को राइट डाउन कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी मेजर अचीवमेंट्स को जॉट डाउन कर रहे हैं, और किस तरीके से आप उन जॉटेड इन्फॉर्मेशन या उन पॉइंटेड लाइंस को अपनी ज़िंदगी के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्योंकि एसेंशियल पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी के अंदर रिमार्केबल डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप नॉन एसेंशियल पॉइंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नॉन एसेंशियल पीपल के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, या आप अपना टाइम परेटो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली उन लोगों के साथ कंज्यूम कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए डिटोरिएटेड हैं, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ब्रिंग all the deteriorated consequences into your future life. So last most important point is actually depending upon your selection, how actually you are going to select the outcomes of your life which are going to be executed into your life. So तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग एपिसोड में हम एक और इन्फ्लुएंशियल ऑथर की एक और इन्फ्लुएंशियल बुक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।